हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड एन एलिप्स। नाउ सो अगर हम इसको थोड़ा समझे ना विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, सो सपोज दिस इज द एलिप्स दैट वी हैव और एक लाइन है जो कि कुछ इस तरह से है। नाउ इन दिस सिनेरियो ये जो लाइन है और ये एलिप्स, इनमें कोई इंटरसेक्शन नहीं है। सपोज इफ वी चेंज द पोजिशन ऑफ अ लाइन टू मेक इट लाइक दिस, now we can say the line is touching the ellipse, and in this scenario the line is intersecting with the ellipse at 2 points. So let us say हम तीनों केसेस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं. So this is the second scenario, and एक और सिनेरियो जो होगा वो कुछ इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते. So here it has basically 2 points of intersection. Here it has 1 point of intersection, and here there is no intersection. So in order to understand this scenario in detail, let us try to solve the equation of the ellipse and the line and see what we can derive. So let us say equation of जो ellipse है वो है x square by a square plus y square by b square equals to 1, and the equation of line is y is equals to mx plus c. तो अगर हम y को इस equation में put कर देते हैं, so what do we get? x square by a square plus mx plus c का whole square upon b square, and that is equals to 1. So this is basically solving the equation of line and ellipse. तो clearly अगर हम इसको थोड़ा expand कर लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा x square by a square plus m square x square by b square plus 2mcx over b square plus c square by b square minus 1, and that is equal to 0. तो ये हमारा इक्वेशन मिल गया हमें. Now basically this is a quadratic in x, and we know या तो दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हो सकते हैं, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हो सकते हैं, या तो रियल एंड रिपीटेड रूट्स हो सकते हैं, और या तो इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं. Now basically these three cases correspond to these three situations. जब दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होगा, so this is the situation, मतलब बेसिकली 2 points ऑफ इंटरसेक्शन होगा, और इस केस में हमारा जो कंडीशन अप्लाई होगा वो होगा d is greater than 0. For real and repeated roots the condition would be d is equal to 0, and for imaginary roots the condition is d is less than 0. So these are the three conditions for these three cases. Now basically we are interested in the case where ये जो लाइन है ना वो tangent बन जाता है. Let us take this equation and figure out the condition for line to be the tangent. So for line to be the tangent, we can say d जो है ना वो equal to 0 होना चाहिए. So we can write b square minus 4ac is equal to 0. So b is basically the coefficient of x. तो x का coefficient हमको यहां से मिलेगा, तो ये हम लिख देते 2m into c by b square minus 4 into a is coefficient of x square, which is 1 by a square plus m square by b square, और कांस्टेंट है हमारा c square by b square minus 1 equal to 0. तो सबसे पहले हम ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इसको हम, तो दिस गिव्स अस m स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर अपॉन b रेज टू 4 माइनस, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, c स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस 1 बाय a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर बाय b रेज टू 4 माइनस m स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 0. Now clearly if you see, तो these two terms will get cancelled out, और ये माइनस साइन को भी हम हटा सकते हैं. So what we basically have is
C square by A square into B square is equal to 1 by A square plus M square by B square. ये मिल जाता है. And if we further simplify this, we get C square is equals to A square M square plus B square. And hence we can write C is equals to plus minus under root of A square M square plus B square. तो हमारा लाइन का इक्वेशन क्या था? तो हमारा लाइन का इक्वेशन था y is equals to mx plus c. और फॉर लाइन टू बी टेंजेंट हमको c का वैल्यू क्या मिला? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो अगर हम इस c के वैल्यू को इस लाइन में पुट कर देते हैं तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट y is equals to mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a square m square plus b square, and we can say this equation will always be a tangent to the ellipse. Now try to understand प्लस माइनस साइन है ना, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? Now basically अगर हम दोनों इक्वेशन को अलग अलग लिख लेना तो एक लाइन का इक्वेशन मिलेगा हमको y is equals to mx प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और दूसरा लाइन का इक्वेशन मिलेगा y is equals to mx माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो ये दो लाइंस हैं जो दोनों भी टेंजेंट रहेंगी और दोनों का स्लोप सेम है. सो इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ये मैंने एलिप्स ड्रॉ कर लिया. और अगर सपोज एक टेंजेंट में एक पर्टिकुलर स्लोप का ले रहा हूं, नाउ लेट मी आल्सो ड्रॉ द एक्स एंड वाई एक्सिस टू हैव अ क्लियर आइडिया. ये हमारा एक्सिस हो गया. तो अगर हम कहते हैं कि ये एक टेंजेंट है जिसका स्लोप m है, तो देयर विल बी अ सिमिलर टेंजेंट, देयर विल बी अनदर टेंजेंट विद द सेम स्लोप जिसका कि इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा. सो अगर प्लस वाले से हमको ये वाला टेंजेंट का इक्वेशन मिलता है तो माइनस वाले से हमको इस वाले टेंजेंट का इक्वेशन मिलेगा. तो एक का इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा और दूसरे का इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, एंड बोथ दीज टेंजेंट्स विल हैव द सेम स्लोप. सो आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड कि एक लाइन और एलिप्स के बीच में तीनों कंडीशंस कैसे कैसे होंगे. इफ सपोज द लाइन इज इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स, तो जब हम सॉल्व कर रहे थे तो वी विल हैव टू टेक द कंडीशन d greater than 0, and in case we want there to be no intersection, the condition will be d is less than 0. So that is all that we have in this video, students.